Good morning, student. Welcome to the doubt solving session of solid state here. I hope most of the student read the lesson properly. They try to write the answers. They try to solve the numericals as well as the MCQs here. क्योंकि बच्चों हमने थियरी पार्ट, MCQ पार्ट और कुछ न्यूमेरिकल का पार्ट भी हमने डिस्कस किया है। तो डाउट सेशन में बहुत सारे स्टूडेंट ने डाउट पूछा है और आई एम वेरी हैप्पी that many student having the doubts regarding their entrance examination also means most of the student also started the study of their entrance examination here. Therefore I am very glad that you are studying very well and properly and that you are having the doubt there. Okay, now first doubt was asked by the Neha from the Nasik road. Okay, now he having the doubt related to the NEET level question there or JEE level question is there. A crystalline structure has radius ratio in a range 0.225 to 0.414, has coordination number and arrangement of anion around the cation are. Okay, अभी एक क्वेश्चन जो है it is not included in our regular 12 syllabus. रेगुलर का जो 12 का सिलेबस है इसमें ये पार्ट इंक्लूड नहीं है, बट ये जो पार्ट है this is related to the NEET JEE there, and this is related to the one important point, that is radius ratio rule. क्या है? रेडियस रेशियो रूल. अभी क्या है रेडियस रेशियो रूल? Now this is applicable only for ionic compounds. आयोनिक कंपाउंड. एक बात याद रखो, नेहा ने जो क्वेश्चन पूछा है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू द सीईटी, जेईई एंड नीट रिलेटेड टू द रेडियस रेशियो रूल there. And remember, radius ratio is applicable only for the ionic compound, not for other compounds there. Now see here the radius of cation and radius of anion, that is a negatively charged ion. क्योंकि ionic compound में क्या होता है, constituent particles are the charged particle, that is positively and negatively charged particle, they surround each other there. Now from that, when we find the ratio of radius of cation to the radius of anion, this is known as the radius ratio rule. Now this radius ratio decides the coordination number as well as the type of structure there. तो यहाँ पे मैं बच्चों आपको एक चार्ट देता हूँ, वो चार्ट याद रखना है. पहले ले रहा हूं मैं रेडियस रेशो. ओके, रेडियस रेशो लिया है. उसके बाद CN मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर एंड टाइप ऑफ अरेंजमेंट. टाइप ऑफ अरेंजमेंट. ओके, तो टाइप ऑफ अरेंजमेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन रेडियस रेशो इज बिटवीन 0.155 to 0.225, then remember coordination number is always 3 and type of arrangement is triangular planar. कैसी अरेंजमेंट होती है? ट्रायंगुलर प्लेनर होती है.
Now when the ratio is between 2.225 to 0.414, then coordination number is given 4 there. Okay, and the type of arrangement is tetrahedral here. Okay, now उसके बाद 0.414 to 0.732, then coordination number is 6 and the arrangement is octahedral. कैसी होती है? Octahedral. And the one more is given 0.732 to 1.00. Coordination number is 8 and arrangement is cubic there. अभी नेहा ने जो क्वेश्चन मुझे पूछा है उसमें रेडियस रेशियो इज गिवन इन द रेंज. कौन सी रेंज में दिया है? यही रेंज में दिया है. तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है? 4. एंड अरेंजमेंट कौन सी आ रही है? टेट्राहेड्रल. तो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर डाउट नंबर 1 that is asked by the Neha Gumte from the Nasik road there. Okay, I think you got it. क्योंकि ये वैल्यू आपको जब पता होती है तो कोऑर्डिनेशन नंबर पता होता है और कोऑर्डिनेशन नंबर के रिलेटेड हमें क्या पता होता है? दैट इज द अरेंज टाइप ऑफ अरेंजमेंट हियर. ओके, नाउ इन दिस वे द स्ट्रक्चर और द टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज गिवन देयर. गॉट इट? चलो अभी सेकेंड डाउट. अभी दूसरा डाउट भी हमें नासिक रोड की नेहा ने ही पूछा है. बहुत ब्रिलियंट बच्ची है. ओके, ए मेटल एक्स हैज एक्स क्रिस्टलाइजेस इन एफसीसी स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर कौन सा है? एफसीसी स्ट्रक्चर. डाउट नंबर 2 हम डिस्कस कर रहे हैं. ओके, इन एफसीसी अरेंजमेंट विथ एज लेंथ. एज लेंथ मतलब A इज इक्वल टू 862 पिकोमीटर. देन व्हाट इज द शॉर्टेस्ट सेपरेशन ऑफ एनी टू न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स देयर. ओके, तो यहाँ पे दो नियरेस्ट जो एटम्स है उनके बीच में डिस्टेंस क्या है? अभी बच्चों यहाँ पे हमें क्या दिया है? द वैल्यू इज दैट इज स्ट्रक्चर इज गिवन एफसीसी देयर. नाउ फॉर एफसीसी डिस्टेंस बिटवीन shortest distance between any two nuclei or any two atom d is equal to root 2 upon 2 into a, which is equals to root 2 upon 2, that comes to be 0.707. इसकी वैल्यू आती है into a की वैल्यू क्या है? 862. तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आ रहा है 609.43 पिकोमीटर. एंड दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट एटम देयर. ओके, तो बच्चों ये ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके बुक में एक चार्ट दिया है. वो चार्ट एक बार देख लो. उसमें से आपको सिंपल के लिए दिया है, सिंपल के लिए डिस्टेंस दिया है, उसके बाद बॉडी सेंटर्ड के लिए दिया है, उसके बाद एफसीसी के लिए दिया है. ओके, दिस इज द डाउट नंबर 2 विच वाज आस्क्ड बाय द नेहा. ओके नेहा, गॉट इट? चलो नेक्स्ट. अभी हम जाते हैं डाउट नंबर 3. क्या है डाउट नंबर 3? अभी डाउट नंबर 3 में ओके, ये भी क्वेश्चन हमें नेहा ने ही पूछा है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है एक बार जेई में पूछा गया है और इससे रिलेटेड ऐसा एक क्वेश्चन वैल्यू चेंज करके नीट में भी पूछा गया है. इसका मतलब नेहा वेरी वेल डूइंग यू आर.
क्योंकि आपने जेई नीट की भी प्रिपरेशन स्टार्ट की है। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। ओके, तो बाकी बच्चों को भी मेरा एडवाइस है कि अलॉन्ग विद बोर्ड प्रिपरेशन यू स्टार्ट द प्रिपरेशन ऑफ योर जेई नीट सीईटी हियर, क्योंकि बच्चों कॉलेजेस स्टार्ट होने के बाद आपको बिल्कुल ही टाइम नहीं मिलेगा। तो जो क्लास में भी जो पहले पढ़ाया है उसकी खाली रिवीजन होगी, उसके बाद आगे का पार्ट कंटिन्यू होगा। तो यू आर वेरी मच टाइम फॉर द प्रिपरेशन, देयरफॉर डोंट वेस्ट योर टाइम, ओके, एंड इन्वेस्ट योर टाइम इन योर प्रिपरेशन, वेदर इट इज बोर्ड और वेदर इट इज एंट्रेंस देयर। ओके, अभी ये क्या बोल रहा है, तीसरा डाउट, इट ऑल्सो आस्क्ड बाय द नेहा। ओके, एक्सपेरिमेंटली इट वॉज फाउंड दैट मेटल ऑक्साइड हैज फॉर्मूला। मेटल ऑक्साइड दिया है M 0.98 O, M 0.98 O, इसका मतलब ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक ऑक्साइड है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। मेटल M इज प्रेजेंट एज M2 प्लस एंड M3, मतलब ये जो M है ये दो वैलेंसी में प्रेजेंट है, M2 प्लस एंड M3 प्लस, मतलब ये जो प्रेजेंट है इस ऑक्साइड में, इसमें दो वैलेंसीज है, M2 प्लस एंड M3 प्लस देयर। ओके, इन इट्स ऑक्साइड फ्रैक्शन ऑफ द मेटल विच एग्जिस्ट इन M3 प्लस वुड बी, मतलब इसमें M3 प्लस का फ्रैक्शन कितना है। अभी देखो बच्चों, यहाँ पे मेटल जो है M, इट इज मेड अप ऑफ दिस टू, ये दोनों से बना है, मतलब और टोटल कितना है दोनों का 0.98। तो यहाँ पे सपोज इसका फ्रैक्शन हमने लिया x, इसका फ्रैक्शन कितना लिया हमने x, तो अगर M3 प्लस x है तो M2 प्लस कितना होगा 0.98 माइनस x, क्योंकि दोनों मिला के 0.98 है, दोनों मिला के 0.98 है, तो M2 प्लस कितना आएगा 0.98 माइनस x ईयर। अभी वो आपको क्या पूछ रहा है, दे M3 प्लस एग्जिस्ट इन, तो इसका फ्रैक्शन हमें निकालना है। तो फ्रैक्शन निकालने के लिए देखो यहाँ पे पहले x, इसकी वैलेंसी कितनी है 3, देयरफॉर 3 इंटू एक्स लेना है, 3x प्लस यहाँ पे वैलेंसी कितनी है 2 इंटू 0.98 माइनस x इज इक्वल टू टोटल एटम्स कितने हैं 2, ओके, देन 3x प्लस 1 कितना आएगा 96 माइनस 2x इज इक्वल टू 2, देयरफॉर x प्लस 1.96 is equal to 2, therefore x is equal to 2 minus 1.96, x is equal to 0.04, मतलब इसका फ्रैक्शन कितना है दैट इज 0.04, लेकिन उन्होंने आंसर जो दिया हमें परसेंट में दिया है, तो परसेंट ऑफ M3 plus is equal to how much mass is there 0.04, टोटल कितना है इसका 0.98 आउट ऑफ 0.98 0.04 into 100 that is equals to 4 upon 0.98, ओके, 4 upon 0.98। अगर आप इसका डिवीजन करते हैं तो आंसर आ रहा है 0.08% देयर। इन दिस वे द परसेंटेज फ्रैक्शन ऑफ द M3 प्लस इज ऑब्टेन देयर। ओके नेहा, वेरी गुड क्वेश्चन इज देयर, और चैलेंजिंग भी है वो, क्योंकि इसके लिए बहुत थोड़ा सा आपको न्यूमेरिकल बेस भी होना चाहिए,
थोड़ा मैथमेटिकल लॉजिकल थिंकिंग भी होना चाहिए। इसके लिए एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। दिस इज अबाउट योर डाउट नंबर 3 इधर। ओके, अभी इसके बाद वी आर गोइंग टूवर्ड द अनदर डाउट, दैट इज डाउट नंबर 4 which was also asked by the नेहा। तो आज तो नेहा ही चाहिए इन द नासिक रोड ब्रांच। अभी आगे का जो क्वेश्चन है, इट was also asked by the नेहा। नेहा पूछ रही है हाउ टू आइडेंटिफाई विच डिफेक्ट इज शोन बाय कंपाउंड। अभी बच्चों कौन सा कंपाउंड कौन सा डिफेक्ट दिखा रहा है, इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ कंपाउंड। टाइप ऑफ कंपाउंड मतलब अगर आयोनिक कंपाउंड से तो जनरली आयोनिक कंपाउंड शोज द 2 टाइप्स ऑफ द डिफेक्ट देयर। आयोनिक कंपाउंड 2 टाइप्स के डिफेक्ट दिखाते हैं। आयोनिक कंपाउंड ओके, तो आयोनिक कंपाउंड्स में जो भी डिफेक्ट्स है वो कौन से डिफेक्ट्स होते हैं, दैट इज गिवन बाय द स्कॉटकी डिफेक्ट। स्कॉटकी डिफेक्ट। दूसरा होता है फ्रेंकेल डिफेक्ट। ओके, तो फ्रेंकेल डिफेक्ट एंड द स्कॉटकी डिफेक्ट। स्कॉटकी डिफेक्ट में क्या होता है, द साइज ऑफ कटायन एंड अनायन आर द सिमिलर, बट फ्रेंकेल डिफेक्ट में कटायन की साइज अनायन से कम होती है, इसलिए यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट होती है। ओके, कहाँ पे स्कॉटकी डिफेक्ट में वैकेंसी क्रिएट होती है और फ्रेंकेल डिफेक्ट में वैकेंसी क्रिएट होती है, लेकिन जो कटायन अपनी जगह छोड़ रहा है, ओके, वो जगह छोड़ने के बाद क्या होता है, फ्रेंकेल डिफेक्ट में जगह छोड़ने के बाद इट ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल साइट। ओके, अगर मेटल्स होते तो आपको पता है मेटल शोज द इम्प्यूरिटी डिफेक्ट देयर। इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। अभी इम्प्यूरिटी में भी 2 टाइप्स होते हैं। क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूशनल इम्प्यूरिटी एंड द इंटरस्टिशियल इम्प्यूरिटीज देयर। अगर मेटल होते हैं तो मेटल और भी डिफेक्ट दिखाते हैं, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, ओके, और एब्सेंटर डिफेक्ट देयर और कलर डिफेक्ट, दीज आर शोन हियर। देयरफॉर तो हमारा जो बुक है उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए, तो इसके लिए मैं नेहा को या सब लोगों को एडवाइस करूँगा कि बुक में जितने आपको डिफेक्ट्स दिए क्रिस्टलाइन सॉलिड के, तो क्या करना है, तो स्कॉटकी डिफेक्ट लेना है यहाँ पे, स्कॉटकी डिफेक्ट। और स्कॉटकी डिफेक्ट के एग्जाम्पल्स क्या है, दैट इज द NaCl, ZnS, फ्रेंकेल डिफेक्ट, ZnS दिया है। सपोज मेटल इम्प्योरिटी दैट इज द ब्रास, ब्रॉन्ज, ओके, स्टेनलेस स्टील। ऐसे चार्ट क्रिएट करो और वो चार्ट हमेशा पीरियडिकली याद करते रहो, उससे आपको ये डिफेक्ट का जो पार्ट है वो डिफेक्ट का पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, दिस वाज द 4th डाउट विच वाज आस्क्ड बाय द अगेन नेहा। ओके, अभी हम जा रहे हैं 5th डाउट में। क्या है 5th डाउट, अभी नेहा के बाद नासिक रोड का ही डाउट है, विच वॉज आस्क्ड बाय द भार्गवी। किसने पूछा है, भार्गवी ने। ओके, दैट इज फ्रॉम नासिक रोड ब्रांच। भार्गवी क्या बोल रही है, भार्गवी, AB क्रिस्टलाइजेस इन BCC लैटिस। स्ट्रक्चर कौन सा है, BCC लैटिस। क्या बात है, ओके। With age length A is equal to 387 picometer। अच्छा,
डिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज आयन, मतलब दो कटायन आनायन एक दूसरे के साथ है, तो उसमें दोनों आयन के बीच में डिस्टेंस कितना है। अभी जो क्वेश्चन नेहा ने पूछा था वही क्वेश्चन भार्गवी ने भी पूछा है, लेकिन नेहा ने पूछा था एफसीसी के रिलेटेड और भार्गवी पूछ रही है बीसीसी के रिलेटेड। अभी उसके लिए फॉर्मूला लिखता हूं, देखो D इज इक्वल टू √3/2 इंटू ए। ओके, √3/2 इंटू ए। अभी आपकी वैल्यू क्या है? हाँ, अभी ये सॉल्व करने के बाद ये जो वैल्यू आ रही है ना 0.866 इंटू ए, क्योंकि √3 की वैल्यू कितनी है 1.73 डिवाइडेड बाई 2.866। अभी 0.866 इंटू 387। अभी इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आंसर आ रहा है 335.14 पिकोमीटर हियर। गॉट इट भार्गवी? ओके, तो ये भी क्वेश्चन आपको मिल गया है। ठीक है, वेरी गुड। ऐसे ही क्वेश्चन पूछते जाओ, पढ़ाई करते जाओ। चलो, क्वेश्चन नंबर डाउट नंबर 6 अगेन इट वॉज आज बाय द भार्गवी फ्रॉम नासिक रोड। अभी ये क्वेश्चन पूछ रही भार्गवी फ्रॉम नासिक रोड, डाउट नंबर 6। क्या पूछ रही हो? क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। अभी यहाँ पे बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन में देने वाला हूं बच्चों। देखो, ये 3 डायमेंशनल पैकिंग जो है सॉलिड्स में, ये 3 डायमेंशनल पैकिंग इन सॉलिड्स, इट इज गिवन बाय द वेरी सिंपल एग्जाम्पल। दैट इज, आप दीवार बनाते हो बच्चों, तो दीवार इमीडिएटली स्टार्ट करेंगे और दीवार खड़ी हो जाएगी ऐसा नहीं है। तो पहले हम क्या करेंगे? पहले तो प्रिपरेशन करेंगे, ब्रिक्स, उसके बाद कंक्रीट बनाएंगे। ओके, अभी कंक्रीट और ब्रिक्स बना के क्या होगा? इमीडिएटली आपकी दीवार तो नहीं बन रही है। दीवार नहीं बन रही है मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? तो दीवार नहीं बन रही, लेकिन दीवार बनाने के लिए हम ब्रिक्स को क्या करेंगे? प्रॉपरली अरेंज करेंगे एंड उसको रिपीट करते जाएंगे, और रिपीट करने के बाद ऐसे करते करते दीवार बन जाती है। सिमिलरली जब कोई भी क्रिस्टल 3 डायमेंशनल में पैक होता है, फॉर्म होता है, तो उसके लिए पहले क्या होता है? देखो बच्चों, देयर इज अ अरेंजमेंट। ओके, देखो यहाँ पे दिस इज द अरेंजमेंट इन 1 डायमेंशन। कौन से डायमेंशन में? 1 डायमेंशन में। अभी ये 1 डायमेंशन में एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अटैच करके एक रो बन गया। अभी बाद में क्या होता है? देखो यहाँ पे दिस रो लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ द देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ 2 डायमेंशन। अभी 2 डायमेंशनली वो फॉर्म हो रहा है, देखो क्रिस्टल 2 डायमेंशनली, उसके नीचे ओके। अभी इसको बोलते हम हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल अलाइनमेंट। देखो ये हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, देखो अरेंजमेंट हुई है। ठीक है, अभी ये अरेंजमेंट कभी कभी कैसे होती? देखो ये देखो यहाँ पे ये अरेंजमेंट है, तो इसके नीचे आता है। ओके, इसके नीचे आएगा ये, और ये ए लेयर होगा तो ये बी लेयर होगा। अभी ये लेयर अगेन रिपीट होगा। ओके, ए लेयर अगेन रिपीट होगा। अभी ये बी था, ओके, अभी ये ए हो गया, अभी बी रिपीट होगा। ओके, हो गया। ऐसे ए बी, अभी यहाँ पे लेयर ए की था, ए बराबर है। यहाँ पे क्या है? ए बी।
कभी ABC भी होता है, ठीक है। तो अभी इसके बाद दिस इज 2 डायमेंशन, ये क्या होगा 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट हियर। मतलब यहाँ पे जो 1 डायमेंशनल लेयर है वो रिपीट हो जाते हैं एक दूसरे के ऊपर स्टैकिंग करते हुए, ठीक है। अभी उसके बाद क्या होता है, व्हेन वी गो थ्रू दिस 2 डायमेंशन, अभी इसका क्या होता है 3 डायमेंशन। देखो एक 2 डायमेंशन कंसिडर करते हैं हम, देखो यहाँ पे 2 डायमेंशनल है, देखो ये क्या है 2 डायमेंशनल, ओके। अगेन 2 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, ओके, 2 डायमेंशनल, ओके। अभी इसके बाद इस लेयर को उठाओ, सेम लेयर को इसके पीछे लगा दो। कैसे होता है देखो, ये ऐसे दिखते, देखो पीछे से आपको, ये देखो ऐसे पीछे से लगा दिया। अभी दूसरा लेयर देखो, ओके। तो ऐसे 3 डायमेंशनल फॉर्म हो जाता है, और ये 3 डायमेंशनल फॉर्म होने के बाद देर इज ए क्लोज पैकिंग इज देयर। अभी इसमें क्या होता है देखो, ये लेयर है देखो, अभी ये बी लेयर है, इसके नीचे और एक लेयर लिया हमने। अभी यहाँ पे इसको हम इसके ऊपर बिठाएंगे, कैसे, ये देखो, तो ये 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग हुए। अभी इसको बोलते हैं 3 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल हो गया 3 डायमेंशनल। तो इन दिस वे दी 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन, मतलब स्टार्टिंग कहाँ से होती है 1 डायमेंशन से, then there is a formation of 2 dimension from 1 dimension, and from 2 dimensional there is a formation of 3 dimensional there, okay। ऐसे आप इसको पैक कर सकते हैं। दिस इज द स्टैकिंग ऑफ द पार्टिकल्स ओवर वन अनदर हियर, ओके। अगेन दिस वाज द क्वेश्चन बाय द भार्गवी हियर। तो ये था भार्गवी का क्वेश्चन, दैट वाज द डाउट नंबर 6 फ्रॉम नासिक रोड ब्रांच, ओके। तो इन दिस वे क्वेश्चन जो था ये रिलेटेड था, ओके। अभी इसके बाद भार्गवी ने मुझे और एक क्वेश्चन पूछा था, देखो पैकिंग इफिशियंसी इन एफसीसी, पैकिंग इफिशियंसी इन एफसीसी, ओके। क्या कैसा होता है एफसीसी में, देखो एफसीसी ओके। अभी यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हियर। अभी फेस सेंटर्ड, मतलब जो फेस होता है, देखो ऊपर का फेस देखो, ये फेस देखो, इसके सेंटर में आएगा। ये फेस देखो, इसके सेंटर में, ये फेस देखो, इसके सेंटर में, ये फेस देखो, इसके सेंटर में। अभी ये फेस देखो, कौन सा पीछे वाला, कौन सा ए, तो ये आता है यहाँ पे, और ये जो फेस देखो सामने वाला, तो ये आता है यहाँ पे, उसके सेंटर में आता है। तो 6 फेसेस हो गए, ठीक है। अभी यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं एज लेंथ। क्या कंसिडर करते हैं, एज लेंथ इज इक्वल टू ए, मतलब ये एज लेंथ कितनी हो गई, ए भी ये हो गया। अभी यहाँ पे हम डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट एटम निकालना है। तो ये पहला देखो यहाँ पे, ये देखो ये, हाँ, तो इसका हम ए बी और ये सी, ठीक है। तो हमें पहले बीसी की लेंथ निकालनी है। अभी दूसरा पॉइंट क्या है, रेडियस ऑफ एटम और स्पीयर, लेट इट इज इक्वल्स टू आर देयर, ठीक है। हाँ, उसके बाद हाँ, वॉल्यूम,
वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब, क्योंकि एटम जो ऑक्यूपाई किए गए, किसने ऑक्यूपाई किए? क्यूब ने। ठीक है, अभी इसके बाद वॉल्यूम, that is volume of sphere is equal to 4/3 pi r cube। 4/3 pi r cube वो एक स्पीयर का वॉल्यूम, लेकिन स्ट्रक्चर कौन सा है? एफसीसी। और एफसीसी में कितने एटम्स होते हैं पर यूनिट सेल? 4 होते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ ऑल spheres is equal to 4 into 4/3 pi r cube, that is equals to 16/3 pi r cube। there हो गया वॉल्यूम ऑफ स्पीयर। तो एफसीसी ने कितने ऑक्यूपाई किए? ठीक है, दैट इज 4। तो 4 से हमने मल्टीप्लाई किया। अभी इसके बाद ये देखो, यहाँ पे ए बी देखो कैसे आएगा। एक्चुअली ये जो दिखा है ना मैंने, ये एक दूसरे को अटैच होते हैं। ऐसे देखो, ये ऐसा, ये इसको अटैच है और ये इसको अटैच है। तो ये क्या हो गया? अपना ए। ये कितना हो गया? अपना बी। और ये सेंटर, इसको ज्वाइन करने के बाद देखो आर 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 आर। तो ए बी इज इक्वल टू कितना आएगा? 4r। कितना आ गया? 4r। ठीक है, तो 4r आने के बाद एफसीसी का पूछ रहे हो आपको, तो कौन सा भी ले सकते हैं आप? ए भी ले सकते हैं। ओके, आप ए भी ले सकते हैं। ठीक है, अभी उसके बाद देखो, इन ट्राइंगल एबीसी व्हाट हैपन? इन ट्राइंगल एबीसी ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, which is equals to a square plus a square, that is equals to 2a square। therefore ab is equal to root 2a। लेकिन ab की वैल्यू क्या है यहाँ पे? देखो 4r। 4r is equal to root 2 into a। ओके, अभी यहाँ पे 4r is equal to root 2a, therefore r is equal to root 2 by 4 into a, और a इज इक्वल टू 4r अपॉन रूट 2। रिलेशन मिल गया। ओके, रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड एज लेंथ। अभी यहाँ पे पैकिंग इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या है? इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्पीयर्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंटू 100। अभी वॉल्यूम ऑफ स्पीयर क्या है? 16/3 पाई आर क्यूब। ओके, डिवाइडेड बाय ए क्यूब। हाँ, अभी इसमें से आप कोई भी एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे। तो किसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे? चलो ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। 16/3 पाई आर क्यूब अपॉन 4r अपॉन रूट 2 क्यूब इंटू 100 16/3 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाय व्हाट इज द क्यूब? 16 6 4 4 16 16 6 64 r क्यूब 2 रूट 2 इंटू 100। अभी क्या होगा? r क्यूब कैंसल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा? देखो 16 इंटू पाई। अभी ये 2 रूट 2 ऊपर आएगा, 2 रूट 2 डिवाइडेड बाय 64 इंटू 3। ओके, इंटू 100। ओके, अभी क्या करेंगे आप? इसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड देखो है 16 1 जा 16 4 जा 2 1 जा 2 2 जा। तो यहाँ पे क्या आएगा? पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल्स टू पाई इंटू रूट 2 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 100। 3.14 इंटू 1.41 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 6।
और ये सारा कैलकुलेशन करने के बाद आंसर कितना आता है 74% हियर। ओके, गॉट इट बच्चों। तो पहले क्या किया हमने, एज लेंथ ए ले ली, रेडियस कितनी r, उसके बाद वॉल्यूम निकाल लिया a क्यूब, उसके बाद इसमें जो स्पीयर से मतलब एटम है इसका वॉल्यूम कितना है 4/3 पायर क्यूब। स्ट्रक्चर कौन सा है FCC, FCC में कितने एटम्स होते हैं 4, तो 4 एटम का वॉल्यूम कितना हो गया 16/3 पायर क्यूब। उसके बाद नियर यहाँ पे हमने ए और रेडियस और एज लेंथ के बीच में रिलेशन फाइंड किया बाय टेकिंग द ट्राइंगल ABC। उसके बाद पैकिंग इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब इनटू 100। सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें आंसर मिल रहा है 74% हियर। इन दिस वे पैकिंग इफिशियंसी इज ऑब्टेन्ड देयर। ओके, हाँ, तो ये था पैकिंग इफिशियंसी ऑफ FCC देयर। तो इसका पैकिंग इफिशियंसी कितना आ रहा है 74। उसके बाद वाइड वॉल्यूम कितना आएगा, फिर अगर यहाँ पे पैकिंग इफिशियंसी 74 है तो वाइड वॉल्यूम कितना आएगा 26%। 100 माइनस 74 दैट इज गिवन हियर। ओके, तो इन दिस वे द पैकिंग इफिशियंसी ऑफ द FCC structure. Similarly, you can find out for the BCC and FCC there. Okay. Now उसके बाद यहाँ पे दूसरा आगे का जो डाउट है, ये था हमारा डाउट नंबर 7। अभी यहाँ पे डाउट नंबर 8 और डाउट नंबर 11, डाउट नंबर 8 एंड डाउट नंबर 11, मतलब एक डाउट ये सेम डाउट है। एक डाउट पूछा है हमें वैष्णवी धोंगड़े फ्रॉम नासिक रोड, और दूसरा जो हमें डाउट पूछा है वो सुजल फ्रॉम इंदिरा नगर ब्रांच। तो मतलब दो ब्रांच के दो स्टूडेंट का एक ही डाउट है। तो ये डाउट नंबर 8 एंड 11 हियर। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड यूनिट सेल इन x ग्राम ऑफ मेटालिक क्रिस्टल दर, मेटालिक क्रिस्टल दर। तो मेटालिक क्रिस्टल के लिए व्हाट वी आर डूइंग हियर, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो क्वेश्चन एक बार देखो, क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड द यूनिट सेल इन x ग्राम ऑफ मेटालिक क्रिस्टल देयर। तो हमें ये क्वेश्चन वैष्णवी फ्रॉम नासिक रोड एंड सुजल फ्रॉम इंदिरा नगर, दो बच्चों ने एक ही डाउट पूछा है लेकिन वो अलग अलग ब्रांच के हैं। ठीक है, अभी सबसे पहले हमें एक रिलेशन पता है, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनटू मोलर मास अपॉन वॉल्यूम इनटू एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, हाँ, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे देखो, हाँ, तो राइटिंग द फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ m, तो फॉर्मूला क्या आएगा, m इज इक्वल टू रो इंटू ए क्यूब इंटू Na एवोगाड्रो नंबर अपॉन n। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इसको हम बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। अभी पहले क्या करते हैं हम, ओके, पहले हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करते हैं। अभी ये क्या है देखो, मोलर मास m contain how many particle, molar mass m contain how many particles, मोलर मास, किसी भी सब्सटेंस का मोलर मास मतलब उसका 1 मोल होता है। कितना मोल होता है, 1 मोल।
एंड आपको 1 मोल के बारे में पता है, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस एंड दैट इज इक्वल्स टू एवोगाड्रो नंबर कंटेन Na पार्टिकल्स। कितने पार्टिकल्स है? Na पार्टिकल्स देयर। तो यहाँ पे therefore this is the molar mass m gram contain Na particle, therefore x gram contain, तो x ग्राम कितना कंटेन करेगा? तो क्रॉस मल्टीप्लाई x इंटू Na अपॉन m। ओके, तो इतने पार्टिकल्स x ग्राम में होंगे, लेकिन हमें m की वैल्यू पता है। ये देखो m की वैल्यू, तो कैसे? x इंटू Na अपॉन m की वैल्यू रो इंटू a क्यूब इंटू Na डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय n। तो अभी क्या होगा? Na कैंसल हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू n ऊपर जाएगा x इंटू n अपॉन रो इंटू a क्यूब। तो x ग्राम कंटेन दिस मच पार्टिकल्स। आए समझ में सुजल, वैष्णवी? तो ऐसे निकालना है। पहले देखो डेंसिटी और मोलर मास के बीच में हमें रिलेशन पता है। उसके बाद हमने क्या किया? क्वेश्चन इज दैट इज फॉर्मूला इज रिटन इन टर्म्स ऑफ मोलर मास, लेकिन मोलर मास जितना मास है उतना मास मतलब उस सब्सटेंस का 1 मोल होता है, और 1 मोल कंटेन एवोगाड्रो नंबर विच इज डिनोटेड बाय Na। तो m ग्राम कंटेन Na पार्टिकल, देयरफॉर x ग्राम। तो x ग्राम के लिए आप पूछ रहे, तो x ग्राम कंटेन x इंटू Na अपॉन m पार्टिकल, लेकिन m की वैल्यू हमें पता है। तो ये कहाँ से आया? फ्रॉम इक्वेशन 1। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमने लिख दिया। अभी दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसमें? देखो उसमें दूसरा क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं नंबर ऑफ यूनिट सेल। नंबर ऑफ यूनिट सेल, सपोज n particles, okay, present in 1 unit cell। 1 यूनिट सेल, तो एक यूनिट सेल में कितने पार्टिकल है हमने कंसिडर किया? n। ओके, तो यहाँ पे x ग्राम में कितना आएगा? तो x ग्राम कंटेन, तो यहाँ पे हमें क्या है? तो x ग्राम कंटेन। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? अभी हमारे पास कितने पार्टिकल है? ये देखो यहाँ पे ऑलरेडी हमें पार्टिकल है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं x इंटू n अपॉन रो इंटू क्यूब पार्टिकल्स। ओके, करस्पॉन्ड्स टू क्या होगा? करस्पॉन्ड्स टू n पार्टिकल, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लाई x इंटू n अपॉन रो इंटू a क्यूब होल डिवाइडेड बाय n। तो क्या होगा? x इंटू n अपॉन रो इंटू a क्यूब इंटू 1 अपॉन n डिवाइडेड बाय n। n कैंसल हो जाएगा, इज इक्वल टू x अपॉन रो इंटू a क्यूब हियर। तो इतने यूनिट सेल किस में होंगे? x ग्राम में। ओके, दिस इज गिवन इन टर्म्स ऑफ द x ग्राम देयर। तो इन दिस वे हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिल रहे हैं। ओके सुजल, वैष्णवी, सुजल फ्रॉम इंदिरा नगर, वैष्णवी फ्रॉम नासिक रोड। ओके बच्चों, तो ये था हमारा डाउट नंबर 8 और
11। ठीक है बच्चों, अभी यहाँ पे क्या करेंगे, हम आगे का डाउट लेंगे। ये समझ में आया? ठीक है, तो कोई पॉइंट नहीं यहाँ पे अभी जो डाउट के लिए होगा। ठीक है, चलो अभी हम प्रोसीड होते हैं नेक्स्ट डाउट की तरफ। आगे का डाउट जो है हमें पूछा है, अगेन आई थिंक इट वाज आस्क्ड बाय द भार्गवी। किसने पूछा है हमें? वो भार्गवी ने, भार्गवी फ्रॉम नासिक रोड ब्रांच। ओके, तो कैसे होगा यहाँ पे कि डाउट का जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन हम अभी देखते हैं। क्या है? डाउट नंबर 9। ओके, डाउट नंबर 9 देखो, इन कंपाउंड एटम्स ऑफ एलिमेंट Y, पहले कौन है? Y क्या कर रहा है? इन FCC, ओके FCC लैटिस, and those of element X occupies 2/3 of tetrahedral। तो वो पूछ रहा है द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। ठीक है, अभी फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। ओके, therefore Y in FCC, so number of atoms of Y is equal to 4। क्यों 4 आ रहा है? क्योंकि FCC है एंड FCC contain 4 atoms per unit cell। ठीक है, now number of atoms of X is equal to, अगर आपके पास 4 पार्टिकल है तो टेट्राहेड्रल वाइड कितने हो गए? उसके डबल होते, 2 × 4 = 8। तो यहाँ पे X कितने हो गए? 8। लेकिन ये देखो यहाँ पे, if there are n particles are there, n पार्टिकल्स, तो टेट्राहेड्रल वाइड कितने होते हैं? 2n पार्टिकल्स। ओके, पार्टिकल्स, तो यहाँ पे सेम कंसिडरेशन यहाँ पे किया हमने। यहाँ पे एटम्स कितने? 4, तो टेट्राहेड्रल कितने होंगे? 2 × 4 = 8। लेकिन X पूरा नहीं है, उसने 2/3 है, therefore actual number of atoms of X is equal to 8 × 2/3, that is equals to 16/3। 16/3 here। तो X के कितने एटम है? 16/3। Y के कितने एटम है? 4। तो फॉर्मूला क्या है? XY। लेकिन X कितना है? 16/3। ओके, और Y कितना है? 4। अभी इसको हम सिंप्लीफाई कर दे। देखो X 16, Y 12। ये देखो 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, 3 से यहाँ, देखो 3 और यहाँ पे 3, ये 3 कैंसिल हो गया, 4 × 3 = 12। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, X 4 × 4 = 16, 4 × 3 = 12। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, और ये कंपाउंड का फॉर्मूला है। ठीक है, अभी बच्चों याद रखो, ये क्वेश्चन मैंने CET का जो एंट्रेंस के जब क्वेश्चन डिस्कस किए थे उसमें भी ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था, वो भी एक बार देख लो। तो ये था आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 9। ओके, डाउट नंबर 9 था। ओके, अभी हम जाते हैं डाउट नंबर 10। समझ में आए ना? अगर देर आर n पार्टिकल्स होते हैं FCC में तो टेट्राहेड्रल वाइड कितने होते हैं? उसके डबल करना है।
2 4 8, लेकिन वो 2/3 ही ऑक्यूपाई कर रहा है, देयरफॉर 8 को हमने 2/3 से मल्टीप्लाई कर दिया। चलो अभी हम आते हैं डाउट नंबर डाउट नंबर 10। अभी ये पूछा है हमारे श्रुति ने पूछा है, श्रुति फ्रॉम नासिक रोड। क्या बोल रहा है? पीए एंड पीबी, पीए एंड पीबी आर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए एंड बी। ओके, मतलब P एंड PB आर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A एंड B. XA is mole fraction of A, the total vapor pressure of solution. अगर यहाँ पे प्योर कंपोनेंट का लिया है, प्योर कंपोनेंट, ठीक है, तो प्योर कंपोनेंट यहाँ पे लिया है और मोल फ्रैक्शन इसका x से लिया है, तो इसका कितना लेते हैं हम? x भी लेते हैं, ठीक है। चलो अभी ये मोल फ्रैक्शन हुआ। अब हम क्या करते हैं? राउल्स लॉ अप्लाई करते हैं। राउल्स लॉ क्या है? राउल्स लॉ, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ vapor pressure of pure component into mole fraction of that component. Now see here, for A, P dash A, suppose इसको क्या करते हैं हम? पार्शियल प्रेशर। P dash A is equal to PA into XA, like equation number 1. PB, partial vapor pressure of B is equal to pressure of B in the pure form into XB, equation number 2. अगर P is the total vapor pressure of solution, then P is equal to PA dash plus PB dash. अभी ये दोनों की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, PA into XA plus PB into XB there. Okay, this is the value of P. But we know that बच्चों, अभी इक्वेशन नंबर क्या हो गया? 3. But we know XA plus XB is equal to 1. ये तो हमें पता है। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे? देखो हम therefore XA is equal to 1 minus XB, 1 minus XB. Let this is equation number 4 from 3 and 4. तो क्या होगा? P is equal to PA into 1 minus XB plus PB into XB. अभी इसको सॉल्व करते देखो, PA minus PA into XB plus PB into XB here. अभी इसको रीअरेंज करते, PA प्लस, इसको पहले लिखते हैं PB XB माइनस PA XB, तो यहाँ पे क्या आएगा? PA प्लस XB कॉमन लेते हैं, XB इंटू PB माइनस PA। ओके, तो ये एक ऑप्शन आएगा। हाँ, अभी दूसरा ऑप्शन क्या आएगा? देखो दूसरा ऑप्शन, XA प्लस XB इज इक्वल टू 1, देयरफॉर XB इज इक्वल टू 1 माइनस XA। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर, इसको क्या कंसिडर करते हैं? 5। Now from 3 and 5, 3 and 5, ओके, तो कैसे आएगा? P is equal to, ओके, PA
इंटू एक्स ए प्लस पी बी इंटू 1 माइनस एक्स ए पी ए, हाँ, देन पी ए एक्स ए प्लस पी बी माइनस पी ए, हाँ, पी बी देखो यहाँ पे, सॉरी पी बी इंटू एक्स ए। अभी पी बी को मैं पहले लिख लेता हूँ, पी बी प्लस पी ए एक्स ए माइनस पी बी एक्स ए, हाँ, इज इक्वल टू पी बी प्लस, अभी एक्स ए को कॉमन लेते हैं, पी ए माइनस पी बी इधर, तो पी इज, और ये दूसरा ऑप्शन, मतलब यहाँ पे दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ राउल्स लॉ। तो ये राउल्स लॉ का एप्लीकेशन है। देखो पहले प्योर कंपोनेंट है, उसका मोल फ्रैक्शन, फिर हमने राउल्स लॉ दोनों का अप्लाई किया, सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर लिया हमने, उसके बाद दोनों का एडिशन किया। नाउ वी नो दैट सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1, तो एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी लिया, और यहाँ पे हमें ए एक्सप्रेशन मिला। अगर हमने एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए लिया तो हमें ये ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। इन दिस वे द ऑप्शन नंबर, दैट इज द डाउट नंबर 10 which was asked by the Shruti from Nasik Road। अभी हम जाते हैं डाउट नंबर 12 की तरफ, क्योंकि 11th एंड 8th वाला डाउट दो बच्चों ने एट ए टाइम पूछा था, तो वो ऑलरेडी डिस्कस हो गया। अभी हम जाते हैं डाउट नंबर 12 की तरफ। डाउट नंबर 12, अभी ये जो डाउट था, दिस वाज आस्क्ड बाय द श्रुति फ्रॉम नासिक रोड, ठीक है। अभी आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट डाउट जो पूछा है हमें, रिलेशन बिटवीन डेंसिटी एंड मोलर मास एंड वॉल्यूम देयर। अभी ये जो डाउट है हमें पूछा है हमारे अथर्व ने फ्रॉम इंदिरा नगर। डाउट नंबर 12 कौन पूछ रहा है? अथर्व। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। अभी डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल का डेरिवेशन डिराइव करने के लिए अथर्व पहले क्या करना है? एज लेंथ ले लो। एज लेंथ, ओके, एज लेंथ इज इक्वल टू ए। ओके, अभी यहाँ पे सब क्यूबिक सिस्टम हम कंसिडर कर रहे हैं, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना आएगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब। ठीक है, ए क्यूब मिल गया। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। ओके, अभी सेकेंड पॉइंट में जाते हैं। सेकेंड पॉइंट में क्या लेना है? मास। ओके, नाउ सी हियर, मास ऑफ वन पार्टिकल, एक पार्टिकल का मास लेते हैं स्मॉल एम, देयरफॉर हमारे पास कितने पार्टिकल्स होते हैं? मास ऑफ एन पार्टिकल्स, लेकिन हमारे पास एन पार्टिकल्स है, इज इक्वल टू एम इंटू एम, मास ऑफ वन पार्टिकल इंटू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स देयर। ओके, अभी तीसरा पॉइंट देखो। तीसरे पॉइंट में क्या करना है? डेंसिटी। अभी हमें डेंसिटी का फॉर्मूला पता है। डेंसिटी रो इज इक्वल टू मास ऑफ पार्टिकल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है। अभी हमारे पास पार्टिकल कितने हैं? m इंटू एन, और वॉल्यूम कितना है? ए क्यूब। ए कहाँ से मिल रहा है हमें? फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 से मिल रहा है। ठीक है, थर्ड। अभी फोर्थ पॉइंट में जाते हैं। ओके, फोर्थ पॉइंट में, लेकिन हमें पता है बच्चों, यहाँ पे मोलर मास जो होता है, मोलर मास, मोलर मास m is equal to mass of one particle into Na, that is m is equal to m, small m into Na। ओके, तो m is equal to क्या आएगा?
m अपॉन Na, ये हो गया आपका मोलर मास, ठीक है। देयरफॉर m की वैल्यू मिल गई हमें, तो 5th पॉइंट में क्या करना है, नाउ सी हियर डेंसिटी रो इज इक्वल टू क्या वैल्यू मिल रही है, m इंटू n अपॉन a क्यूब। तो हाँ, रो इज इक्वल टू m की वैल्यू क्या है, m अपॉन Na इंटू n डिवाइडेड बाय a क्यूब। अभी इसको रीअरेंज कर दो, m इंटू n अपॉन a क्यूब इंटू Na, ये होगा डेंसिटी का फॉर्मूला। ओके, ये कहाँ से आया, फ्रॉम 4, क्योंकि स्मॉल m की वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है, तो वो वैल्यू हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, और ये कहाँ से आया, यहाँ से, ठीक है। तो इन दिस वे यू कैन इजीली फाइंड आउट द डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल देयर। ओके, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको कभी भी पूछा जा सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ओके अथर्व एंड अदर स्टूडेंट। ओके, अभी हम आते हैं डाउट नंबर 13। हाँ, क्या है, अभी अथर्व हमें आगे का डाउट पूछ रहा है बच्चों। ओके, सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट इन एलिमेंटल सॉलिड दर। ओके, अभी यहाँ पे देखो, ये पार्टिकल्स की अरेंजमेंट है। ओके, ये पार्टिकल्स की अरेंजमेंट है, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये अरेंजमेंट है, दिस इज द प्योर क्रिस्टल। ओके, अभी क्या होता है ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन, जब क्रिस्टलाइजेशन होता है तो एक्स्ट्रा पार्टिकल उसमें होता है। तो एक्स्ट्रा पार्टिकल जो है, तो एक्स्ट्रा पार्टिकल देखो यहाँ पे रो कॉलम है अच्छे से अरेंज हुए, लेकिन जो एक्स्ट्रा पार्टिकल है, दिस एक्स्ट्रा पार्टिकल ऑक्यूपाइज द इंटरस्टिशियल साइट। क्या, इंटरस्टिशियल साइट, इंटरस्टिशियल साइट उसने ऑक्यूपाई किया है। तो इन दिस वे इट इज द सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट देयर। ओके, आगे क्या होता है नेक्स्ट, नाउ व्हेन वी गो थ्रू द अनदर पार्ट हियर, नाउ इन द सेल्फ इंटरस्टिशियल देखो यहाँ पे, दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। ओके, ये दिस इज द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ओके, पहले जो कंडीशन थी उस कंडीशन में क्या था, एक्स्ट्रा पार्टिकल प्रेजेंट था, तो एक्स्ट्रा पार्टिकल ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल साइड देयर। ओके, इंटरस्टिशियल साइड है, लेकिन यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा पार्टिकल है वो इंटरस्टिशियल साइड ऑक्यूपाई कर रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है देखो, यहाँ से जो एक पार्टिकल है वो मूव हो रहा है। ओके, मतलब यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो रही है। क्या क्रिएट हो रही है, वैकेंसी। अभी यहाँ पे जो वैकेंसी जिस पार्टिकल ने क्रिएट की है, जो भी हो, वो पार्टिकल सॉलिड के बाहर नहीं जाएगा, इट ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल साइट। अगेन ओके, इंटरस्टिशियल साइट, इसका मतलब इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वैकेंसी एंड द इंटरस्टिशियल। और यहाँ पे क्या होता है, एक्स्ट्रा पार्टिकल ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल साइट, और यहाँ पे एक पार्टिकल अपनी जगह छोड़ के इंटरस्टिशियल साइट ऑक्यूपाई कर रहा है, इसको बोलते हैं सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ओके, इन द एलिमेंटल सॉलिड देयर। ओके, तो ये बहुत इजी पॉइंट है जहाँ पे सेल्फ ऑक्यूपेशन होता है ये विद इन द
elemental solid there. तो यहाँ पे हमने डाउट नंबर 13 भी क्लियर कर दिया अथर्व का. अथर्व फ्रॉम इंदिरा नगर. ओके, तो ये हमारा अथर्व भी बहुत पढ़ाई करने लगा अभी. अच्छी बात है, कीप इट अप बच्चों. ठीक है, अभी आगे का जो डाउट है, डाउट नंबर 14, ये हमें अथर्व ने भी आगे का क्वेश्चन पूछा है. मतलब ये अथर्व का ये तीसरा क्वेश्चन है. बहुत बढ़िया. ओके, अभी यहाँ पे बच्चों अथर्व आस्किंग द डाउट नंबर 14 अबाउट स्कॉटकी डिफेक्ट. स्कॉटकी डिफेक्ट. अभी स्कॉटकी डिफेक्ट किसके लिए होता है? ये डिफेक्ट किसके लिए है? इट इज द डिफेक्ट फॉर द आयोनिक कंपाउंड. मतलब देखो यहाँ पे कटायन अनायन, कटायन अनायन, कटायन अनायन. अभी यहाँ पे अनायन कटायन, अनायन कटायन, अनायन कटायन. ओके, अगेन कटायन अनायन, कटायन अनायन, अनायन कटायन. ओके, अनायन कटायन, अनायन कटायन. अभी यहाँ पे क्या होने वाला है? देखो स्कॉटकी डिफेक्ट एक्चुअली क्या होता है. अभी स्कॉटकी डिफेक्ट में जो भी कंपाउंड्स ये डिफेक्ट दिखाते हैं उसमें होता है हाई आयोनिक कैरेक्टर. आयोनिक कैरेक्टर बहुत ज़्यादा होते हैं उसमें, हाई आयोनिक कैरेक्टर्स. उसके बाद उसमें होता है हाई कोऑर्डिनेशन नंबर. कोऑर्डिनेशन नंबर पता है आपको, ठीक है. एंड तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है? दैट इज स्मॉलर डिफरेंस. स्मॉलर डिफरेंस इन साइज ऑफ कटायन एंड अनायन. मतलब साइज ऑफ कटायन एंड अनायंस आर रिमेन सेम. मतलब इनका जो रेशियो है नॉट लेस, दैट इज नॉट सो ग्रेटर देन यूनिटी. एक से ज्यादा या ज्यादा एक से कम नहीं होता है, ठीक है. अभी इस डिफेक्ट में क्या होता है? सपोज यहाँ पे एक कटायन रिमूव हुआ और यहाँ पे एक अनायन रिमूव हुआ, तो इक्वल नंबर ऑफ कटायन, कटायन वैकेंसी, और यहाँ पे क्या हुआ? अनायन वैकेंसी. तो स्कॉटकी डिफेक्ट इज अराइजेस when equal number of cations and anions are missed from their original places, mean removed from the crystal. It is known as the Schottky defect here. अभी Schottky defect में क्या हो रहा है? कटायन एंड अनायन आयोनिक सॉलिड से क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है. अभी ये रिमूव होने की वजह से क्या होता है? ये रिमूव होने की वजह से the mass decreases. मास क्या होता है? मास डिक्रीज होता है. मास डिक्रीजेस, therefore density also decreases. तो स्कॉटकी डिफेक्ट की वजह से डेंसिटी भी डिक्रीज होती है. ओके अथर्व, ठीक है, गॉट इट. हाँ, तो इक्वल नंबर ऑफ कटायंस एंड अनायंस आर remain unoccupied in their given crystal there. Okay, अभी इसके बाद क्या होता है? Equal cation and equal anion. Therefore, what happens here? Electrical neutrality. Electrical neutrality जो है, it is preserve. क्या होती है? प्रिजर्व होती है. In this way the Schottky defect is given there. तो Schottky defect कब arise होता है? Schottky defect is arises when equal number of cations and anions are remain unoccupied. Now this defect is occur when they are having the high ionic character, high coordination number, smaller difference in the size of cation and anion. Now during that
cation and anion removed or unoccupied, therefore mass goes on decreasing. जब मास डिक्रीज होता है तो डेंसिटी भी डिक्रीज होगी, लेकिन इक्वल नंबर ऑफ कटायन एंड आनायन रिमूव हो रहे हैं, इसके लिए इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होगी, मतलब पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज नहीं आएगा, इट रिमेन न्यूट्रल देयर। ये था हमारा अथर्व का डाउट फ्रॉम इंदिरा नगर। ठीक है, इसके आगे ओके अभी इसके आगे और भी एक डाउट पूछा हमें इंदिरा नगर से। इंदिरा नगर की हमारी जो पूजा है, पूजा पवार, ये डाउट पूछ रही है, एन एलिमेंट हैज बीसीसी स्ट्रक्चर। डाउट नंबर 15। ओके, कौन सा स्ट्रक्चर है? बीसीसी। हाँ, बीसीसी है, ठीक है। विथ यूनिट सेल लेंथ, यूनिट सेल लेंथ मतलब A इज इक्वल टू 288 पिकोमीटर। ठीक है। हाउ मेनी यूनिट सेल इन 200 ग्राम? मास is given 200 gram. Okay, and number of atoms in 200 gram of element. How many unit cell? Okay. तो पहले हम क्या करते हैं? तो पहले हम फाइंड करते हैं नंबर ऑफ एटम्स। ओके, नंबर ऑफ एटम्स। ओके, अभी हमने आई थिंक एक डाउट नंबर 8 और 11 में हमने एक डाउट देखा था, देखो, नंबर ऑफ एटम्स इन एक्स ग्राम। तो उसके लिए हमने फॉर्मूला डिराइव किया था। कौन सा फॉर्मूला? एक्स इंटू एन अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए, दैट इज रो इंटू ए क्यूब। ठीक है, अभी हमें यहाँ पे बच्चों डेंसिटी भी प्रोवाइड की गई है। डेंसिटी कितनी दी है? 14.44 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। हाँ, तो यहाँ पे मास कितना है? x, तो दिस इज इक्वल्स टू x, तो x कितना है? 200। ओके, इनटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं? n, बीसीसी स्ट्रक्चर है, तो n इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय डेंसिटी 14.44 इंटू इज इक्वल टू, अभी इसको हम कन्वर्ट करते, देखो ये देखो यहाँ पे a इज इक्वल टू 288 पिकोमीटर, दैट इज इक्वल्स टू 288 इंटू 10⁻⁻12 मीटर, 288 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, 2.88 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर, तो 2.88 इंटू 10⁻⁸ ब्रैकेट क्यूब इज इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाय 14.44 इंटू 2.88 जो है इसका स्क्वायर क्यूब आ रहा है 23.88 इंटू 10⁻⁻24। ओके, तो क्या आएगा आंसर? 400 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाय, अभी ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ रहा है 344.94। अभी इसको डिवाइड करने के बाद आंसर क्या आ रहा है? 1.16 इंटू 10⁻24 ओके एटम्स देयर। ओके, these are the number of atoms or particles are obtained there, atoms. ओके, ठीक है। अभी उसके बाद उन्होंने क्या पूछा है? नंबर ऑफ यूनिट सेल, नंबर ऑफ यूनिट सेल। हाँ, अभी फॉर्मूला पता है, इन एक्स ग्राम, उसका फॉर्मूला क्या है? एक्स अपॉन रो इंटू ए क्यूब। ओके, x कितना है? 200 डिवाइडेड बाय रो कितना है? 14.44, a कितना है? 2.88 इंटू 10⁻⁻
8 ब्रैकेट क्यूब, तो 200 डिवाइडेड बाय 14.44 इंटू 23.88 into 10 raised to minus 24, that is 200 into 10 raised to 24 divided by 344.94 इतना है। तो आंसर कितना आता है यहाँ पे? तो इसका आंसर आ रहा है 0.58 इंटू 10 रेज टू 24। ओके, तो इसका आंसर क्या आने वाला है? 5.8 इंटू 10 रेज टू 23 यूनिट सेल्स। ओके, तो अथर्व, sorry, that is Pooja, this is the answer of this question here. Okay, got it? तो जो फॉर्मूला हमने डाउट नंबर 8 और डाउट नंबर 11 में देखा था, सेम डाउट यहाँ पे दिया है। ओके, दिस इज अबाउट द डाउट नंबर 15। अभी डाउट नंबर 16 जो है वो अगेन पूछ रहे हैं हमारी पूजा पवार फ्रॉम इंदिरा नगर। सर एक्सप्लेन एफ सेंटर इन क्रिस्टल। अभी ये मेटल अनायन, दैट इज अ डिफिशियंसी, इट इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट देयर, मेटल एक्सेस डिफेक्ट हियर। इट इज कॉज्ड बाय द अनायन वैकेंसी, क्योंकि वहाँ पे निगेटिव चार्ज क्रिएट होता है। ओके, नाउ दिस डिफेक्ट इज ऑल्सो नोन एज द एफ सेंटर्ड और कलर डिफेक्ट। एफ सेंटर और कलर, और इसको बोलते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट देयर। ओके, मेटल एक्सेस डिफेक्ट हियर। अभी इसका एग्जाम्पल है NaCl। क्या है इसका एग्जाम्पल? क्या है? NaCl। अभी ये NaCl कैसे अरेंज होता है? देखो, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव, ओके, पॉजिटिव, ओके, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव। यहाँ पे निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव हियर। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो, ये NaCl का रेगुलर स्ट्रक्चर है। अभी यहाँ पे एफ सेंटर्ड कैसे क्रिएट होता है? नाउ हियर NaCl, मतलब जो भी क्रिस्टल है, NaCl हीटेड इन सोडियम वेपर। किसमें इसको हमने किया? सोडियम वेपर। तो सोडियम वेपर के उसके नाउ उसके बाद क्या होता है? सोडियम एटम डिपॉजिटेड एट सरफेस। और सोडियम कहाँ पे डिपॉजिट होगा? ये जो सोडियम, इसके साथ आप NaCl को हीट कर रहे हैं, तो सोडियम कहाँ पे? तो यहाँ पे डिपॉजिट होता है सरफेस के ऊपर, सरफेस के ऊपर डिपॉजिट होता है। अभी डिपॉजिट होने के बाद अभी ये जो Cl माइनस है, मतलब इसमें से Cl माइनस, सपोज ये Cl माइनस है, देखो यहाँ पे। अभी ये Cl माइनस क्या होगा? सरफेस के ऊपर आएगा। Cl माइनस डिफ्यूज होता है, डिफ्यूजेस टू क्रिस्टल सरफेस, क्रिस्टल सरफेस की तरफ आता है। इसकी वजह से क्या होता है? देखो, NaCl, सॉरी, Na प्लस Cl माइनस,
देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ NaCl प्लस इलेक्ट्रॉन. अभी ये Cl माइनस जो है यहाँ पे आ गया और यहाँ पे NaCl फॉर्म होगा, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पीछे रह गया. दिस इज कॉल्ड अनायन वैकेंसी. अभी इस अनायन वैकेंसी की वजह से नाउ NaCl शोज येलो कलर. क्या दिखाता है? येलो कलर. And such a defect is known as the F center, that is the free center for electron, or it show the color, therefore it is known as the color defect there. और it is also called metal excess, क्योंकि यहाँ पे metal ion excess हो गए और कटायन ऊपर निकल गए, अनायन ऊपर निकल गए, therefore vacancy create होती है. This is called F center or the color defect, which is an example of the metal excess defect there. तो ये था हमारा बच्चों डाउट नंबर 16 which was asked by the Pooja from Indira Nagar. तो बच्चों, as far as my best knowledge and the best explanation, I solved all the doubts from Nasik Road and the Indira Nagar branch. Apart from this, if you having the more doubts, you are always welcome. You can contact to your center head, that is Nikam sir or Gade sir, or for Ashok Stam, you can contact to the Prakash sir. Okay, and they will forward your doubt towards me. I will give the explanation and the solution to the doubts here. Okay, bachcho. I think all of you get solved your all the doubts whatever you given here. Apart from this और कुछ doubt होंगे तो you can forward to us. You are always welcome. Thank you बच्चों.